IMF نے آئندہ مالی سال پاکستان کے قرضوں میں 10,433 ارب روپے اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندے شعیب نظامی سے۔ جی شعیب، آگاہ کیجیے۔ جی، پاکستان اور IMF کے درمیان نئے قرض پروگرام اور آئندہ بجٹ کے لیے وہ مذاکرات کا آج 10واں روز ہے اور یہ آج یا کل ختم ہو جائیں گے۔ آج کچھ ٹیم بھی اس میں سے واپس چلی جائیں گی۔ اس میں وہ قرضوں کے فریم ورک پر بات چیت کی گئی ہے۔ اس میں IMF کا یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے قرضوں میں ایک سال کے اندر آئندہ 10,433 ارب روپے کا اضافہ ہوگا اور یہ جو قرضوں کا حجم ہے وہ 76,913 سے بڑھ کر 87,346 ارب روپے ہو سکتا ہے۔ اس میں مقامی قرضوں کے اندر تقریباً 7,636 ارب روپے کا ہوگا، کی قرضے ان میں 2,797 ارب روپے کا اضافہ ہوگا۔ اور اس طرح پاکستان کا جو مقامی قرضہ ہے وہ 53,878 ارب روپے، جبکہ غیر ملکی قرضہ جو ہے وہ 33,648 ارب روپے تک پہنچ سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ شعیب نظامی۔ وزیر خزانہ اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں مختلف وزارتوں کے لیے تکنیکی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دی جائے گی۔ اجلاس میں روز ویلٹ ہوٹل نیو یارک کے معاشی چیلنجز کے حوالے سے حکومتی تعاون پر غور کیا جائے گا۔ ایرا کے لیے 1 ارب، وزارت داخلہ کے لیے 62 لاکھ، وزارت داخلہ کی 5 کروڑ 44 لاکھ، وزارت صحت کی 12 ارب اور پار ڈویژن کے لیے 2 ارب روپے سے زائد کی تکنیکی ضمنی گرانٹ پر غور کیا جائے گا۔ داسو ہائیڈرو پروجیکٹ منصوبے پر کام کرنے والے چینی ہلاک شدگان کے لیے پیکج کی منظوری دیے جانے کا بھی امکان ہے۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا وفد کے ہمراہ تاریخی چوکنڈی قبرستان کا دورہ، قائم مقام قونصل جنرل جیمی مولڈن اور دیگر ان کے ہمراہ تھے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں اس دورے کی جانیں گے صلاح الدین سے۔ بتائے گا صلاح الدین۔ دیکھیں، بالکل امریکی سفیر نے وفد کے ہمراہ تاریخی چوکنڈی قبرستان کا دورہ کیا ہے۔ وفد میں قائم مقام قونصل جنرل سمیت صوبائی وزیر بھی موجود تھے، جبکہ امریکی وفد کا چوکنڈی میں تاریخی قبروں کا معائنہ بھی کیا گیا۔ صوبائی وزیر سید ذوالفقار علی شاہ نے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کو چوکنڈی قبرستان کی قدیم تاریخی حیثیت سے بھی متعلق آگاہ کیا گیا۔ جی بہت شکریہ صلاح الدین تفصیلات کے لیے۔ اوتھل اور جیونی میں پاکستان کوسٹ گارڈز کی کارروائیاں، منشیات، چھالیاں، سگریٹ اور گٹکا برآمد کر لیا گیا۔ ترجمان پاکستان کوسٹ گارڈز کا کہنا ہے کہ کوئٹہ سے کراچی آنے والی کوچز سے یہ برآمد کی گئی ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہے جانیں گے انجم وہاب سے۔ جی انجم، بتائیے گا۔ پاکستان کوسٹ گارڈ نے مختلف علاقوں میں کارروائی کی۔ اوتھل جیونی کے علاقوں سے بسوں میں سے چھالیاں، سگریٹ، گٹکا برآمد کر لیا۔ کوئٹہ سے کراچی آنے والی کو سے چرس برآمد کیا، جبکہ چیکنگ کے دوران کوئٹہ سے کراچی آنے والی مسافر کو سے چھالیاں بھی برآمد کیا۔ جبکہ جیوانی کوسٹل ہائی وے پر روڈ چیکنگ پر ایک سنگل کیبن گاڑی سے سگریٹ کے 680 ڈنڈے اور گٹکے کے 45 تھیلے برآمد ہوئے۔ برآمد شدہ چھالیاں، سگریٹ اور گٹکے کی مالیت لاکھوں روپے میں بتائی جا رہی ہے۔ قبضے میں لے کر مزید کارروائی شروع کر دی گئی۔ بہت شکریہ انجم وہاب تفصیلات کے لیے۔ اہم خبر دیں گے آپ کو، پیمرا کی جانب سے عدالتی کارروائی کی کوریج پر پابندی کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ شہزاد ملک سے مزید تفصیلات لیں گے۔ شہزاد، بتائے گا درخواست میں کیا کہا گیا ہے؟ جی، پیمرا کی جانب سے کورٹ رپورٹنگ پر پابندی کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ سمرا ملک ایڈوکیٹ نے لاہور ہائی کورٹ میں پیمرا کا نوٹیفکیشن چیلنج کیا ہے، جبکہ درخواست میں پیمرا وفاقی حکومت اور سیکٹری انفارمیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ پیمرا کا 21 مئی کو جاری کردہ نوٹیفکیشن غیر قانونی ہے۔ پیمرا کا نوٹیفکیشن آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کے خلاف ورزی ہے۔ عدالت پیمرا کا نوٹیفکیشن کالعدم قرار دے، جبکہ یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ عدالت پٹیشن کے حتمی فیصلے تک پیمرا کا نوٹیفکیشن معطل کرے۔ جی بہت شکریہ شہزاد ملک آپ کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف متحدہ عرب امارات کے ایک روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اظہر، بتائیے۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ ایک دن کا دورہ ہے۔ ان کے ہمراہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف جام کمال اور وزیر اطلاعات و نشریات بھی ہیں۔ وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے کے بعد یہ متحدہ عرب امارات کا یہ پہلا دورہ ہوگا ان کا۔ ابوظہبی میں وزیر اعظم شہباز شریف متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید ال نہیان کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اس ملاقات میں متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے مابین تعاون کے مزید فروغ کے حوالے سے تفصیلی طور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کی وہاں پر اہم کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی، جس میں پاکستان اور UAE کے درمیان سرمایہ کاری کی فروغ کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ اعلیٰ حکومتی عہدیداروں اور اماراتی کاروباری شخصیات کے ساتھ بھی
वज़ीर आज़म की मुलाकात जो है वो शेड्यूल्ड है। बहुत शुक्रिया अजहर फारूक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी बरामद से मुतालिक इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि अगर चीनी बरामद नहीं की गई तो आइंदा सीजन में शुगर मिल्स दिवालिया हो जाएंगी। 40 शुगर मिल्स बंद हो जाएंगी। मुल्क में 15 लाख टन चीनी इजाफी मौजूद है। चीनी बरामद की इजाज़त ना मिली तो शुगर मिल्स नवंबर में क्रशिंग नहीं कर सकेंगी। 5 लाख टन चीनी के एक्सपोर्ट से $26 करोड़ हासिल होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीनी की बरामद का फैसला इक़्तिसादी राब्ता कमेटी करेगी। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को हिदायत की है कि चीनी के स्टॉक और आलमी मार्केट का जायजा ले। मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं है। शुगर मिल्स पूरा साल चीनी 140 रुपये फैक्ट्री प्राइस पर फराहमी की यकीन दहानी करवाए। सखर के गांव हसन चौहान में कुएं में गिरी गाय को बचाते हुए 2 भाइयों समेत 3 अफराद कुएं में डूबकर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। सलीम सहतो से मजीद तफसीलात लेंगे। जी सलीम बताइएगा। जी बिल्कुल, रोड़ी के करीब गांव हसन चौहान में 2 सगे भाइयों समेत 3 अफराद गाय को बचाते हुए कुएं में डूबकर जाँ बहक हो गए। रोड़ी पुलिस के मुताबिक गुलहसन चौहान गांव में जो है वो अब्दुल लतीफ, अब्दुल जब्बार जो सगे भाई और उनका चचादाद भाई शहजादो गांव के करीब बकरियां और गाय चरा रहे थे कि उनकी एक गाय जो है वो कुएं में गिर गई। पहले जो बड़ा भाई था अब्दुल लतीफ वो कुएं में गाय को बचाने के लिए उतरा, उसके बाद उसके दूसरे भाई ने कुएं में छलांग लगा दी। दोनों भाइयों को बचाने के लिए उनके चचादाद भाई ने भी कुएं में छलांग लगा दी। तीनों जो है वो गाय को बचाते हुए तीनों अफराद पानी में कुएं में डूबकर जाँ बहक हो गए। अहले इलाका ने तीनों अफराद की लाशें बाहर निकाली। पुलिस ने तीनों लाशों को रोड़ी अस्पताल जरूरी कार्रवाई के लिए मुंतकिल कर दिया है। पुलिस का कहना है कि तीनों लोग जो है वो गाय को बचाते हुए कुएं में डूबकर जाँ बहक हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम साहब तो तफसीलात के लिए। सिंध और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहर शदीद गर्मी की लपेट में हैं। 11 बजे ही मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 45 डिग्री अबूर कर चुका है। सिंध के शहरों कंबर, नवाबशाह, कंडियारों में दर्जा हरारत 45 डिग्री को छू गया। जनूबी पंजाब के इलाकों रहीम यार खान का दर्जा हरारत 45 डिग्री है, जबकि बहावलपुर और मुल्तान का दर्जा हरारत 44 डिग्री को छू गया। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। दिन के वक्त दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने से कारोबारी जिंदगी मुतासर हो रहा है, जबकि सन स्ट्रोक के मुतासरा की तादाद भी बढ़ रही है। मजीद बता रहे हैं कमर जमान। बिल्कुल, जिस तरह महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि मई के जो आखिरी अयाम हैं उनमें शदीद गर्मी पड़ेगी, इसी लिहाज से फैसलाबाद और उसके जो नवाही इलाके हैं, चक जुमरा है, जड़ावाला, तांदलेवाला, समंदरी, मामू कांजन, वहाँ पर भी शदीद गर्मी जो है इस वक्त पड़ रही है। फैसलाबाद और नवाही इलाकों में 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जो है इस वक्त, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग भी हो रही है। 1 जून तक फैसलाबाद और उसके नवाही इलाकों में शदीद गर्मी पड़ती रहेगी, जबकि माहिरीन सेहत का भी यही कहना है कि दिन 11 बजे से लेकर दोपहर 2-3 बजे तक जो है गैर जरूरी तौर पर बिला जवाज घरों से बाहर ना निकला जाए, ताकि हीट वेव जो है उससे बचा जा सके, क्योंकि हीट वेव की वजह से जो सन स्ट्रोक के जो मरीज हैं उनमें भी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। माहिरीन सेहत जो है उनका ये कहना है कि एक तो जब बाहर निकलें तो सर पर कपड़ा रख कर बाहर निकलें, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और घरों से बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। जी, कराची में शदीद गर्मी के बायस जिना अस्पताल में हीट स्ट्रोक के 70 के करीब मुतासरीन लाए गए हैं। ज़्यादातर अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया है। डॉक्टर्स कहते हैं शदीद गर्मी में बाहर ना निकलें। अनवर खान बताइए। कराची के अंदर गर्मी की शिद्दत का सिलसिला बदस्तूर जारी है और महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37.2 डिग्री तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। और गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के अंदर हीट स्ट्रोक वार्ड कायम किए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिना अस्पताल के अंदर, और जिना अस्पताल में कायम किए गए इस वार्ड को 10 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। डॉक्टर इरफान सिद्दीकी, इंचार्ज हीट स्ट्रोक सेंटर, जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अब तक मजमूई तौर पर हीट गर्मी की शिद्दत से मुतासरा कितने अफराद आपके सेंटर में लाए जा चुके हैं? अच्छा, मेरे पास जो तादाद है, जो डेटा है, वो 70 से 80 पेशेंट्स का है, जो पर्टिकुलरली हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं। उनमें से 70 पेशेंट जो थे हीट एग्जॉशन के थे, वो उसकी माइल्ड कैटेगरी होती है, और 10 पेशेंट जो थे वो हीट स्ट्रोक के थे, जिनको हमने दाखिल किया है। पेशेंट्स अभी कम आ रहे हैं कि 7 से 8, 10 तक भी जा रहे थे मेरे पास पेशेंट। अभी पेशेंट्स कम हो रहे हैं। 10 दिन के दौरान मजमूई तौर पर कमोबेश 70 अफराद ऐसे थे कि जो कि माइल्ड शिकार हुए थे, बहुत हल्की शिद्दत का था, ताहम 10 अफराद ऐसे थे कि जो कि हीट स्ट्रोक से बहरास मुतासर हुए थे। आज़ाद कश्मीर के हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात में भारतीय मीडिया का घिनौना किरदार। आज़ाद कश्मीर में हाल ही में पुरतशद्दुद वाक़यात में पुलिस अहलकारों को जख्मी और शहीद किया गया।
वफाकी हुकूमत ने मुस्बत रद्द अमल के तहत मुतालबात मंजूर किए। अवामी एक्शन कमेटी के किए गए मुतालबात को मंजूर किया गया। वफाकी हुकूमत ने आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत को फौरी 23 अरब रुपए इजाफी फंड जारी किए। हुकूमत के मुस्बत फैसले के बावजूद मखसूस टोले ने इदारों के खिलाफ गलीज जबान की। अवामी एक्शन कमेटी के मखसूस टोले ने पथराव किया और गाड़ियों को आग लगाई। कुछ रहनुमाओं ने वाज़े तौर पर तशद्दुद से मना किया, मगर शरपसंद इंतशार को हवा देते रहे। भारतीय मीडिया ने घिनौना किरदार अदा किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इस मामले पर। बहुत शुक्रिया राशिद वली साहब वक्त देने के लिए। हमने देखा कश्मीर में जो मामलात हुए, ये भी देखा कि हुकूमत की जानिब से बड़ा मुस्बत किरदार अदा किया गया, लेकिन हिंदुस्तान की जानिब से बड़ा एक नेगेटिव रोल एक मरतबा फिर से प्ले किया गया और कुछ अफराद ऐसे थे जिन्होंने इस मामले को हवा दी और नेगेटिविटी फैलाई। क्या कहेंगे इस पर आप? ये बिल्कुल, ये कश्मीर में जो पाकिस्तान का एक स्टांस है और एक भारत का स्टांस है, उसमें बौदुल मुशरिकीन है। पाकिस्तान तो इसको एक डिस्प्यूट समझता है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को एक स्टेटस दिया हुआ है, एक स्टेट का, वहाँ का एक प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ का प्रेसिडेंट है, लेजिस्लेटिव असेंबली है और तमाम प्रॉपर्टी राइट्स कश्मीरियों को दिए हुए हैं। भारत ने तो उसको एक स्टेट से तनज़ुली का दर्जा देके उसको यूनियन टेरिटरी करके ज़म कर लिया है, जो कि इंटरनेशनल लॉ की सरियन खिलाफ वर्जी है। अब उसमें अब वो इस दर पे है कि पाकिस्तान का जो कश्मीर का इलाका है, उसको वहाँ पे प्रॉक्सी वारफेयर के जरिए एक ऐसा इंतशार फैलाएं और जिससे उनकी तरफ जो क्रिटिसिज्म आ रहा है, उनके अपने इंटरनली और बैनुल अक़वामी सतह पर वो डाइवर्ट हो जाए। तो ये बदकिस्मती से ये बहुत इस पे पैसा फेंक रहे हैं और ये एग्जैक्टली एक आपने जो शुरू में पॉइंटर दिया कि ये एक ऐसी चीज थी जिसमें बैरूनी तौर पर उसको शर पसंदों को उकसाया गया ताकि वो एक ग्रीवेंसेस की उसमें एक्सक्यूज में ये ऐसा इंतशार पैदा करें, कुछ वहाँ पे कत्लो गारत हो जाए और उसको फिर वो लाशों पे सियासत करें, उसको हवा दें और दुनिया के सामने ये रखें कि पाकिस्तान और भारत का जो स्टांस है वो ठीक है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब, इस पर आप अपना पॉइंट दे रहे थे।